بلا شبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ دیکھنے والے اور سننے والی ہے۔ معراج کا سفر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے، بطور معجزے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک تھوڑے سے وقت میں جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کا سفر کرایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے جایا گیا۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ یہاں پر بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، یہاں پر ایک گیٹ لگا ہوا ہے باب عبدالعزیز کے نام سے، تو اس کی داہنی جانب میں ابھی یہ جگہ موجود ہے۔ جو حضرات حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک گیٹ ہے باب عبدالعزیز کے نام سے، اور اس جب گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو بائیں جانب میں یہ جگہ پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جس گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو کچھ آواز آنی شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، 3 مرتبہ جب ایسا ہوا، 3 مرتبہ کے بعد جس گھر کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے چھت پھٹتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں پر لے جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ چیک کیا، قلب اطہر کو نکالا، اور قلب اطہر کو نکالنے کے بعد سونے کے دشت میں رکھ کر اس کے اندر علم و حکمت بھرا گیا، یعنی زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور پھر بالکل صحیح طریقے سے اس کو ایسے ہی لگا دیا گیا۔ یعنی جب کہیں جیسا کہ حج کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے وہاں آدمیوں کو دوائی پلائی جاتی ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، تاکہ وہاں جا کر کوئی آدمی کو تکلیف پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہاں کی آب و ہوا معتدل ہے یا بدلی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیونکہ اب سفر شروع ہونے والا ہے، آسمانوں کا سفر شروع ہونے والا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکالا، یعنی اللہ کے نبی کا آپریشن کیا گیا، اور قلب اطہر کو نکال کر اس کے اندر علم و حکمت بھرا گیا۔ اس کے بعد سینے کو برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ براق جو ہے کھچر کے مانند ایک سواری ہے، ایک جانور تھا۔ اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی زبردست تھی، اتنی تیز تھی کہ بجلی کے مانند بجلی آتی ہے تو سیکنڈوں میں کئی کلومیٹر کے 1000 کلومیٹر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کھچر جو تھا، براق جو تھا، اس کی تیز رفتار اتنی زبردست تھی کہ بجلی کے مانند تھا۔ آدمی کی نگاہ جہاں تک پڑتی ہے، یعنی اتنی دیر میں اتنی دور پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب آئے۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کو براق کو ایک جگہ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، جن میں ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے آپ کو جو سا پیالہ پسند ہو آپ اس کو استعمال فرما دو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کو استعمال کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نے سرت والے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ اگر آپ شراب والے پیالے کو نوش فرما لیتے تو آپ کی امت ہلاک و برباد ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس نے فرمایا کہ اننا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار کو، بہتے خون کو اور
गोश्त को। और इसी तरीके से गैरुल्लाह यानी जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, गैरुल्लाह का नाम लिया जाता हो, तो तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर हराम करार दी है। जब आमतौर से शराब का रिवाज था, साहबा किराम को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि शराब की हुर्मत साबित हो गई है, शराब के हराम करार दे दिया गया है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को इस दौर से इस पर अमल किया। रिवायत के अंदर आता है कि मदीने के अंदर तमाम जगह पर शराब फैली हुई थी, यानी तमाम साहबा किराम ने अपने घरों के अंदर जो शराब रख रखी थी तमाम के तमाम मटकों को तोड़ डाला। ऐसा महसूस हो रहा था गोया कि कोई पानी का यहाँ पर चश्मा खोल दिया गया हो, तमाम जगह पर शराब फैली हुई थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इस जोर से वो खैर मकदम क्या करते थे, अल्लाह के नबी की बात को इस जोर से तस्लीम क्या करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूध वाले प्याले को नोश फरमाया। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी आपको खुशखबरी हो, आपको खुश आमदेद हो, आपने फितरत वाले रास्ते को इख्तियार कर लिया है। अगर आप शराब वाले प्याले को नोश फरमा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, हलाक हो जाती। उसके बाद आपके लिए एक सीढ़ी लाई गई, यानी सीढ़ी को अरबी में मेराज कहते हैं। मेराज और मेराज को कहते हैं अरबी में और उर्दू में कहते हैं सीढ़ी। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज कराई जा रही है, सवारी पर सवार है, आसमानों का सफर शुरू होने वाला है। तो उस दौर में जब अल्लाह के नबी ने ये बात बतलाई थी कि मैंने आसमानों का सफर किया है, तो उस वक्त लोगों ने इस पर एतराज किया था कि थोड़े से वक्त में क्या कोई एक इंसान आसमानों पर जा सकता है, मस्जिद अक्सा जा सकता है और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज के दौर में इस पर अमल करना, इसको जानना कोई अकल की दूरी नहीं है, क्योंकि आज हर इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दिमाग दिया छोटा सा, और इस छोटे से दिमाग से एक इंसान न जाने कैसी मशीनें ईजाद कर रहा है। आज इंसान हवाओं पर सवार हो रहा है, हवाओं पर उड़ रहा है और चांद तक एक इंसान पहुंच रहा है। तो जब एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को छोटा सा दिमाग दिया और उस छोटे से दिमाग के जरिए से एक इंसान कैसी मशीनें ईजाद कर रहा है, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दिमाग दिया है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुश्किल है कि अपने पैगंबर को अपने पास बुलाए? कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन उस दौर में लोगों ने इस पर एतराज किया था, इस पर एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद अब आसमान का जब सफर शुरू होता है, हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। पहले दरवाजे पर जब पहुंचे तो हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खटखटाया। अब ऐसा नहीं कि फौरन दरवाजा खुल जाता, कहते ही अंदर से आवाज आई कि कौन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ। अंदर से सवाल किया गया कि मन माअका, आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद तीसरा सवाल किया गया कि क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मदरू किया गया है या खुद लेकर आए हो? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया है। अब इन सवाल करने के बाद दरवाजा खुलता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कितना बेहतरीन इंतजाम है, यानी हमारी बगैर मर्जी के कोई यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। इस तरीके से दुनिया के अंदर एक प्रधान होता है, विधायक होता है, MP होता है और मुख्यमंत्री होता है, तो उनके पास जितना बड़ा ओहदा होता है इसी एतबार से उनके पास सिक्योरिटी होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिखलाने मकसूद है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कितना बेहतरीन इंतजाम है, हमारी बगैर इजाजत के यहाँ कोई पंखी भी पर नहीं मार सकती। उसके बाद इन तीन सवालों के बाद दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। सबसे पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी की मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखकर हजरत आदम बड़े खुश हुए और चारों तरफ से खुश आमदेद की आवाजें आनी शुरू हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की, गुफ्तगू फरमाई। उसके बाद दूसरे जब दरवाजे पर पहुंचते हैं, दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, तो वहां भी यही 3 सवाल किए गए थे जो पहले किए गए थे कि कौन है आपके साथ, कौन है। तो 3 सवाल के जवाब देने के बाद अब दूसरा दरवाजा खुलता है, यानी दूसरे आसमान का जब फिर दरवाजा खुलता है, वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। वहाँ भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पुरजोर इस्तकबाल किया गया, खुश आमदीद, चारों तरफ से सलाम की आवाज़ें आ रही है। उसके बाद तीसरे आसमान पर पहुँचते हैं, वहाँ भी यही मामला हुआ, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। उसके बाद हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, हजरत हारून से हुई, हजरत इब्राहीम से हुई, और फिर आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। यानी तमाम आसमानों से गुजरने के बाद, लेकिन हर आसमान पर पहुंचने के बाद ये 3 सवाल किए जाते हैं। 3 सवाल के जवाब देने के बाद ही अब दरवाजा खुलता है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिर में सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अल्लाह के नबी का साथ छोड़ दिया। अल्लाह के नबी तने तना खड़े रह गए। अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहीम से फरमाया कि इब्राहीम, क्या मामला है? दुनिया के अंदर हर वक्त मेरा साथ दिया, खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर मेरा साथ दिया, लेकिन आज मुझे यहाँ तने तना लाकर खड़ा कर दिया है, क्या मामला है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, यहाँ पर मेरी मुंतहा है, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली मुझे जला खाकिस्तर कर देगी। अब वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा के बारे में आता है कि वहाँ पर एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, और उस पर बहुत मोटे मोटे बेर जैसा कि कोई मटके लटके हुए हो, और बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। रिवायत के अंदर आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली पड़ती है तो यहाँ पर रहने वाले तमाम फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस दौर से सजदा करते हैं जैसा कि कोई तितलियां गिरी पड़ी हो। तो सिदरतुल मुंतहा ये जगह है। उसके बाद आप बैतुल मामूर पर पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे तो इस दौरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ कि जहाँ पर एक गड्ढा था, और उसके अंदर नंगे मर्द और नंगे औरतें पड़ी हुई थी। उसके अंदर से आग के शोले उठ रहे थे, और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो छोटा था, नीचे का कुशादा था, नीचे का खुला हुआ था। इस तरह से एक मटका होता है, मटके का मुंह ऊपर से छोटा होता है, नीचे से चौड़ा होता है, तो इस तरह का वो गड्ढा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसमें कुछ नंगे मर्द हैं और कुछ नंगे औरतें हैं, और उसके अंदर से आग के शोले निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने मालूम किया कि इनको अज़ाब कैसा हो रहा है। तो अल्लाह के नबी को जवाब दिया गया कि आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं वो जो जिना क्या करती थी, यानी ये जिनाकार मर्द और जिनाकार औरतें हैं, और इनको अज़ाब क़यामत तक ऐसे ही दिया जाता रहेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र जगह से हुआ, जहां बहुत जबरदस्त तरीके से उसके अंदर दाखिल होते हैं, वो जबरदस्त तरीके से बदबू आ रही है। अल्लाह के नबी ने बार बार अपने नाम बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जबरदस्त तरीके से बदबू थी। अल्लाह के नबी ने मालूम किया ये तो अज़ाब हो रहा है, जिसका एक मज़ाक क्या मामला है, वहाँ पर जवाब दिया गया कि आप इबादत करने की इजाज़त मर्द और औरत की शर्मगाह से इसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मर्द और औरत आज एक निकल रहा है जिसके आदाज जबरदस्त तरीके से नहीं हो है। और पूछा गया बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चलाया गया कि सिलाई कराया गया, सिनाकार से कराई गई, यानी ये अपनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से नहीं क्या करते हैं और अपने शर्म क्या अमल में जाए उसके बाद क्या करते हैं कि जहाँ से वापस आए तमाम दौरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत का भी मुशाहदा किया और कराया गया, और जहन्नम का भी मुशाहदा कराया गया। बाकी अल्लाह का हो जाएगा आइंदा में मुशाहदा इस सारे हो जाएगा। अल्लाह ताला यानी मुसलसल के साथ ये मामला हो रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल
बुनियाद पर काटी जा रही है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अल्लाह के नबी, कि आपकी उम्मत के वो मर्द लोग हैं जो ज़ेब व ज़ीनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या करते हैं ताकि दूसरी औरतें हमारी तरफ माइल हो। ज़ेब व ज़ीनत इसलिए क्या करते थे ताकि दूसरी लड़कियां हमारी तरफ माइल हो। अगर आंखों पे ये सुरमा लगाते थे तो इनकी दिली ख्वाहिश ये हुआ करती थी ताकि कोई औरत, कोई लड़की मुझे मोहब्बत का पैगाम दे, कोई औरत मेरी तरफ माइल हो। तो लोगों औरतों को बजाने के लिए, औरतों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये लोग ज़ेब व ज़ीनत क्या करते थे। इस वजह से कोई आज़ाद दिया जा रहा है। और आगे फरमाया कि मैंने फिर कुछ आगे देखा कि एक गड्ढा है और उसके अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है। मैंने हज़रत जिब्राइल से फिर मालूम किया कि जिब्राइल, इनको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो ज़ेब व ज़ीनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या करती थी ताकि दूसरे मर्द हमको देखें, दूसरे मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, दूसरे मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये औरतें ज़ेब व ज़ीनत क्या करती थी। अगर कोई कपड़ा पहन रही होती, अगर कोई जूते पहन रही होती थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी ख्वाहिश होती थी कि दूसरे मर्द हमको देखें, दूसरे लड़के हमारी तरफ मुतवज्जा हो। तो ये ज़ेब व ज़ीनत हलाल तरीके से नहीं बल्कि लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए हराम तरीके से ज़ेब व ज़ीनत क्या करते थे। तो इस वजह से इनको ये अज़ाब दिया जा रहा है। और इसी पर बस नहीं फरमाया, आगे फरमाया कि कुछ औरतें साथ साथ, यानी ये जो लड़के और लड़कियों का मामला है, यानी हमारे नौजवान लड़कियां आज इस मरहले से गुजर रही हैं कि अगर वो ज़ेब व ज़ीनत भी कर रही हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है ताकि कोई लड़का हमारी तरफ माइल हो। लड़के की ज़ेब व ज़ीनत इसलिए होती है ताकि कोई लड़की हमारी तरफ माइल हो। तो इसी पर बस नहीं, आगे जो शादीशुदा हमारे मर्द होते हैं इनकी भी यही ख्वाहिश होती है। यानी अगर कोई औरत घर के अंदर रह रही है, शादीशुदा औरत है, घर के अंदर रहते हुए ज़ेब व ज़ीनत नहीं करती, क्योंकि अगर ज़ेब व ज़ीनत घर के अंदर करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके शोहर के लिए होगी जो इनका हलाल है, जायज़ है। लेकिन घर के अंदर सड़ी भूसी रहेगी, कपड़े कहीं से फटे हुए हैं, ना कितने दिन हो गए मुंह नहीं धुला है। लेकिन अगर कहीं बाजार में जाना है, सैर व तफरीह के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो वहाँ जाने के लिए अच्छी तरह का मेकअप करेगी, अच्छी तरह के कपड़े पहनेगी, अच्छी तरह के बूट पहनेगी, जो कि इसके लिए जायज़ नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, चाहे वो नौजवान लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा मर्द हो और गैर शादीशुदा मर्द हो, दोनों के लिए जायज़ है कि वो हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से ज़ेब व ज़ीनत करें। यानी आज हम अपने माशरे पर गौर फिक्र करें। आज हमारा माशरा 95% ऐसा है कि जो हमारे माशरे की जो शादीशुदा औरतें हैं वो ज़ेब व ज़ीनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि दूसरे मर्द हमको देखें। यानी घर के अंदर रहते हुए, क्योंकि घर का मर्द मौजूद है, और एक औरत का ज़ेब व ज़ीनत करना सिर्फ और सिर्फ उसके मर्द के लिए जायज़ होता है, उसके शोहर के लिए जायज़ होता है। लेकिन वो ज़ेब व ज़ीनत अपने मर्द के लिए नहीं बल्कि बाजार में घूमने के लिए कर रही है, कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए कर रही है, जो कि उसके लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए हलाल नहीं है। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए ज़ेब व ज़ीनत करना हलाल तरीके से जायज़ है। अगर नाजायज़ तरीके से ज़ेब व ज़ीनत कर रही है तो उसके लिए जायज़ नहीं है, उन दोनों को यह अज़ाब दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान बतलाया है। इसी के मुताबिक अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमारा गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ, एक ऐसे मकाम से हुआ कि एक टीला है और टीले पर एक शख्स खड़ा हुआ है, यानी फरिश्ते खड़े हुए हैं और नीचे कुछ आदमी खड़े हुए हैं, और वो टीले पर चढ़ने वाला शख्स उनके पत्थर इस जोर से मारता है कि उसका रेजा रेजा हो जाता है, और उसका जो सर होता है, सर बिल्कुल भेजा बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, उसके छींचड़े उड़ जाते हैं और वो पत्थर दूर जाकर गिर जाता है। अब उसको इतने उठाकर लाते हैं, उसका सर फिर से सालिम हो जाता है। उसके बारे में अल्लाह के नबी ने मालूम किया कि अल्लाह के जिब्राइल, इनको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, या आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाया करते थे,
यानी ईशा की नमाज नहीं पढ़ा करते थे और ईशा की नमाज पढ़े बगैर ही सो जाया करते थे, और दूसरी नमाजों के अंदर भी सुस्ती काहिली क्या करते थे, तो इनको आजाद दिया जा रहा है। फिर आज़ीज़ आप अपनों पर गौर फिक्र करें, आज हम कितनी नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं। आज हम दिन में एक आध मरतबा नमाज पढ़ ली, दो बस पढ़ ली, उससे तो ऐसे होते हैं कि बस सिर्फ जुमे के अंदर नमाज पढ़ ली, बाकी तमाम नमाजें गायब हैं। अब देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस शख्स की जो है ईशा की नमाज छूट रही थी, यानी ईशा की नमाज जो नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उसको कितना भयानक अज़ाब दिया जा रहा है। पत्थर जोर से मारा जाता है कि उसके सर का भेजा बिल्कुल अलग हो जाता है, छींचड़े निकल जाते हैं, तो इसको अज़ाब दिया जा रहा है। और जो बिल्कुल नमाज पढ़ता ही ना हो तो उसको कितना सख्त अज़ाब दिया जाएगा। आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि फिर हमारा बुजुर्ग कुछ ऐसे शख्सों पर हुआ कि जिनके पीछे से यानी पीछे की शरफगाह से आग दहकाई जा रही थी, पीछे की जानिब से आग दहकाई जा रही थी, और वो आग पीछे की जानिब से होकर आंखों के जरिए से बाहर निकल रही थी, कानों के जरिए से बाहर निकल रही थी, आंखों के जरिए से बाहर निकल रही थी। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल को ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो मर्द के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी क्या करता था, जो औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी क्या करते थे, यानी इनके पास शोहर है लेकिन उसके पास बीवी मौजूद है, बीवी को छोड़कर वो नाजायज तरीके से किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाता था। तो इसके पीछे की शरफगाह से इसको आज़ाब इसलिए दिया जा रहा है, और इतना भयानक आज़ाब होगा कि आप दुनिया की आग तो बिल्कुल हल्की होती है, वो जो आखिरत की जो आग होगी उसकी नौइयत तो कुछ कह ही नहीं सकते, उसकी नौइयत कैसी होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनको आज़ाब दिया जा रहा है, इनकी इस गुनाह की वजह से इनको आज़ाब दिया जा रहा है। आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आगे हमारा गुजर हुआ, कुछ ऐसे टीले पर हमारा गुजर हुआ कि एक जगह दस्तरखान लगा हुआ है और उस पर हराम बदबूदार गोश्त रखा हुआ है, एक तरफ हलाल गोश्त रखा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हलाल गोश्त को छोड़कर हराम बदबूदार गोश्त की तरफ माइल हो रहे हैं। हजरत जिब्राइल ने उनसे पूछा कि जिब्राइल, ये हलाल गोश्त क्यों नहीं खा रहे हैं, हराम गोश्त की तरफ ये क्यों माइल हो रहे हैं? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल चीजों को छोड़कर हराम चीजों की तरफ माइल हुआ करते थे। यानी अगर किसी के पास, किसी औरत के पास उसका शोहर मौजूद है, अपने शोहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम किया करती थी, किसी मर्द के पास उसकी बीवी है लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कर रहा है, तो इन दोनों सूरतों में उनको ये आज़ाब दिया जाएगा। हालांकि मुंह बनाएंगे लेकिन जबरदस्ती उनको खाना पड़ेगा, बदबू आ रही होगी और उनको पिलाया जाएगा, और उसकी शर्मगाह से जो पीप निकलेगा वो उसको पिलाया जाएगा, मुंह बनाएगा लेकिन उसको पीना पड़ेगा, उसका ये अज़ाब होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर हमारा गुजर एक ऐसी जगह से हुआ कि जहाँ पर कुछ औरतों को एक गड्ढे के अंदर डाला गया और उसके अंदर से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। उसके बारे में मालूम किया तो उसके बारे में बतलाया गया कि इनको भी यही अज़ाब दिया जा रहा है कि ज़िनाकार मर्द है और ज़िनाकार औरतें। तो आज हम अपने माशरे में गौर फिक्र करें कि आज हमारा माशरे तमाम नाजायज उमूर की तरफ इस्तिकाब कर चुका है कि नहीं। हम अपने घराने के अंदर, अपने माहौल के अंदर देखें कि आज हमारा माहौल किस तरफ जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया और आकर उसने कहा कि अल्लाह के नबी, आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। तो सहाबाए किराम की मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबाए किराम को इस बात को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के नबी से किस चीज़ की इजाज़त तलब कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रहने दो, उसको मेरे पास भेजो, मैं इससे मालूम करूँगा। तो अल्लाह के नबी ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और उसने अपने पास बुलाकर उससे मालूम किया कि तू अब्दुल्लाह को क्या कह रहा था। उसने बतलाया कि अल्लाह के नबी, आप मुझे क्या एक ज़िना की इजाज़त दे सकते हैं? तो अल्लाह के नबी ने उसको अपने पास बुलाकर कहा कि क्या जो चीज को अपने लिए हलाल समझ रहा है, क्या अगर कोई मर्द तेरी माँ के साथ ज़िना करे या बदकारी करे तो इसको अपने लिए जायज़ समझ सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है? उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर ये बुरा ख्याल कोई मर्द तेरी बहन के साथ करे या तेरी बेटी के साथ करे या तेरी खाला के साथ करे, इसी तरह से अल्लाह के नबी ने उसको गिनवाया और कहा कि अगर कोई शख्स
یہ ارتکاب تیری بہن کے ساتھ کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کرے، کیا تو اس کو جائز سمجھ سکتا ہے، اس کو گوارا سمجھ سکتا ہے، تو اس کو ہونے دے گا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکے گا تو جس کے ساتھ تو برا فعل کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ کس طرح وہ کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ ایک مثال دے کر ان کو بتلایا تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو 3 دعا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے دل کو نیک بنا دے۔ تیسری دعا فرمائی کہ اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس واقعے سے امت کو ترغیب دلا دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے دل کے اندر برے بد فعل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میں جس فعل کی طرف متوجہ ہونے جا رہا ہوں تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔